Hello and welcome back to our channel Physics Safari. My name is Abhishek and I hope you guys are doing good and studying properly. So guys, today in this video lesson, I'm going to talk about the equations of motion and motion in straight lines. फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे in the next video lessons. All good बच्चों? So when I say motion in one dimension or motion in straight line, both are same. Straight line could be horizontal or could be vertical. दोनों में से कुछ भी हो सकता है. But still, that is going to be the motion in the straight line. कहने का सिंपल मतलब है या तो बॉडी एक्सेलरेट करे या डीएक्सेलरेट करे. But if I say that, let me just put it up across over here. Let's say when the body is moving in this direction and having the acceleration in the same direction, then the body would be accelerating, है ना? But still it is going to move in the one dimension. एक ही लेंथ के अक्रॉस वो मूव करेगा. Even if I have the body moving in, having the velocity, instantaneous velocity in this direction and the acceleration in this direction, फिर भी ये straight line motion ही आएगा. Not just this, even if I take the vertical motion, let's suppose body is going in the upward direction and obviously the gravitational acceleration is going to be in the downward direction. ये फिर भी motion in straight line ही कहलाएगा. Also, if the body is falling down with a certain velocity, in this case also the gravitational acceleration is going to be downward. इसको भी हम motion in one dimension में consider करेंगे. तो कहने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही acceleration हो, either in the direction of motion, the instantaneous velocity, or in the direction opposite to the instantaneous velocity. In all these circumstances, the body would be said to be in motion. मैंने previous class में आपको बोला था कि when we have the curvilinear motion at any instant of time, if you could see, the body is actually having some sort of acceleration in this, which is called tangential acceleration, which is going to be along the direction of velocity, or the second acceleration होगा that is going to be towards the center of this particular instantaneous arc, जिसका आप center मान लो कि यहाँ पे है, इसके along होगा, उसको आप a radial भी बोल सकते हो. Under these circumstances, when we have two acceleration, body हमारा curve path में move करेगा with the certain acceleration. अगर हम इस acceleration को zero कर देते हैं, if a radial becomes zero, then the body would move along this direction only, having the velocity v. तो इसी direction में body का motion continue कर जाएगा, and that is going to be the motion in straight line, motion in one dimension. All good? Now, normally when we do not have the acceleration, हम क्या करते हैं? If acceleration is zero, if a is equals to zero, then simple हम करते हैं speed is equals to distance by time, है ना? Distance by time ऐसे हम लोग यूज करते हैं. All good बच्चों? और the velocity is equal to displacement by time when it is a uniform velocity. But now that we have introduced the acceleration, अब हमारे पास acceleration भी है, तो this is not going to work out. ये normal जो formula है वो काम नहीं करेगा. तो उसके लिए अपन को क्या पढ़ना है? Some equations of motion we have to study, which are going to be useful, which are going to be handy, or which are going to be used to find all the parameters of motion, be it velocity, displacement, or your acceleration जो भी होगा, हम इस equation of motion से निकालेंगे. तो स्टार्ट करते हैं विद द इक्वेशंस ऑफ मोशन. और बच्चों उसको मैं डिराइव कर दूंगा बाय द कैलकुलस. आप लोगों ने क्लास 9th में डेरिवेशंस किया होगा विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, बट 9 क्लास 11th आप उन्हीं सभी चीजों को डिराइव करेंगे कैलकुलस के थ्रू. और आई एम श्योर यू गाइस ऑल ऑफ यू हैव डन विद द बेसिक कैलकुलस. आपने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ले लिया होगा, है ना? अगर नहीं तो आप बेसिक मैथ्स जाकर देख लो, आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. नाउ व्हेन आई से द इक्वेशंस ऑफ मोशन, पहली बात जो आपको पता है, मैंने लास्ट क्लास में बता रखा है कि जो एक्सेलरेशन होता है बच्चों, दैट वुड बी गिवन एज dv अपॉन dt. ये हमने बात ऑलरेडी कर रखा है. द एक्सेलरेशन इज ऑल अबाउट रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी. अच्छा, इस पे मैं आई एम गोना टॉक अबाउट दिस लेटर. चलो पहले एक काम करते हैं, पर इसको डिराइव कर लेते हैं. सो कैन आई जस्ट से दैट dv इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ dt, है ना? और इसको अगर इंटीग्रेट कर लेते हैं फॉर अ टाइम फ्रेम, लेट्स से 0 to t, किसी टाइम 0 से t में, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट मान लो, अगर इनिशियल वेलोसिटी भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि इनिशियल वेलोसिटी अंडर योर कंसीडरेशन ना हो. देखो इनिशियल क्या होता है? द टाइम व्हेन यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग द थिंग्स. तो उस टाइम को हम जनरली 0 मानकर चलते हैं, है ना? तो अगर हम 0 टाइम पे किसी बॉडी के पास ऑलरेडी वेलोसिटी हो, तो उसको मान लेते हैं कि उसके पास वेलोसिटी था u, है ना? और एट एनी टाइम t द वेलोसिटी बिकेम v. ऐसा कुछ हम we can consider, right? Which is very obvious and genuine thing to do. If you just integrate this, you will be having v. The limits should be from u and v,
एंड ए बीइंग कांस्टेंट विद द, तो ए क्या हो जाएगा आपका t, और आप लिमिट्स पुट कर दोगे 0 to t. This eventually is going to give you v minus u is equals to a times of t. तो आपके पास जो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया बच्चों, v is equals to u plus at. I'm sure आप सभी इससे काफी ज्यादा वाकिफ हो. You are well aware of this fact that v is equals to u plus at. ये हमने पहले इक्वेशंस ऑफ मोशंस को डिराइव कर लिया. ये हमारा पहला इक्वेशन है जो कि हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम आएगा. अगर हम सेकंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं बच्चों, तो लेट मी कंटिन्यू फ्रॉम हियर इटसेल्फ. कैन आई जस्ट राइट v एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ds अपॉन dt, है ना. आप चाहो तो इसको मैंने वेक्टर के फॉर्म्स को यहाँ पे हटा दिया है, आप चाहो तो उसको वेक्टर के फॉर्म में लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना. तो ds अपॉन dt could be given as what, u plus at. अब एक काम करते हैं, इस ds को मैं वेक्टर हटा देता हूं, आप इसको इस तरफ ले लो या फिर वेक्टर स्टार्टिंग से हटा दो, क्या जरूरत है. डिस्प्लेसमेंट तो मेरे को पता है वो डिस्प्लेसमेंट है ना. तो कैन आई जस्ट से दैट u प्लस at, और आप dt से वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन इस तरफ आ जाएगा ना. वही काम करोगे आप, इसको इंटीग्रेट करोगे. मान लो कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जब टाइम t इक्वल्स टू 0 था, हमने 0 लिया है. ऐसा नहीं कि वहां पे डिस्प्लेसमेंट बॉडी का नहीं हो सकता, इट कुड बी एस इनिशियल हो सकता है, बट मैं उसको 0 मानकर चल रहा हूं, सो दैट आपको एक फेमिलियरिटी आ जाए, आपको वही इक्वेशन देखिए जो आप अभी तक पढ़ रहे हो नॉर्मली, है ना. बट ऐसे तो आप इसको चाहोगे तो एस इनिशियल ले सकते हो. ऐसा नहीं कि अब टाइम इज इक्वल टू 0 बॉडी 0 पे ही हो सकता है कहीं और भी हो, जो कि हम देखेंगे आगे के क्वेश्चंस में. बट यू अंडरस्टैंड, x इज इक्वल्स टू हमने 0 मान लिया, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 मान लिया बच्चों, है ना. अब इसको कंटिन्यू करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया आपका s, और अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, s minus 0. आई एम गोना जस्ट राइट दिस एज s. आपका u t हो जाएगा, राइट. और at का इंटीग्रेशन विल बी हाउ मच, at स्क्वायर बाय 2, है ना. तो मैं ऐसा लिख दूं हाफ at स्क्वायर, और आप लिमिट पुट करोगे t टू 0, 0 वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. बच्चों ये हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया. एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, पहले में क्या रिलेट हो रहा था, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम का रिलेशन था. यहां पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और टाइम एंड एक्सेलरेशन सभी का है. इट मींस आई हैव टू बी वेरी पिकी अप, यू नो, इन चूजिंग द इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या दे रखा है और क्या पूछ रहा है, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट दे आर आस्किंग. बेस्ड अपॉन दैट आई एम गोना पिक अप द इक्वेशन ऑफ मोशन टू सॉल्व. हाँ, कभी कभी किसी क्वेश्चंस में यू मे नीड टू यूज द मल्टीपल इक्वेशन ऑफ मोशन. ऐसा नहीं कि एक से काम चल जाए, हो सकता है आपको दोनों लगाना पड़ जाए, आप वो भी कर सो, हम उसको भी देखेंगे. चलिए थर्ड पे आते हैं. थर्ड थोड़ा अच्छा है एज इन टर्म्स ऑफ इट्स डेरिवेशंस. आपने देखा होगा कि एक्सेलरेशन इज ऑल अबाउट व्हाट. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसको दिमाग में रखना, ये बहुत काम आएगा जब हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है. जब हम बात करेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन का, तब जाकर ये वाला जो रिलेशन है आपको बहुत काम आने वाला है. एज ऑफ नाउ यू कैन सी द एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड द टाइम. बट कुड आई जस्ट से दैट a could be written as dv upon dt, और मैं मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों ds ऊपर और ds नीचे, कोई दिक्कत नहीं है. इट इज नॉट गोना चेंज द इक्वेशन एट ऑल, बिकॉज़ आई एम मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय द सेम वैल्यू, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा. बट वन थिंग वुड चेंज. कैन आई जस्ट राइट dv upon ds, dv upon ds एक तरफ लिख दूं, into इस ds upon dt को मैं एक तरफ कर दूं. That again makes no difference to the stability of the equation. Uniformity तो वही है. Okay बच्चों, so this is going to be ds upon dt is velocity. So a becomes v times of dv upon ds. आपको बहुत सारे बुक्स में a is equals to dv upon dx मिल रहा होगा, because they have represented x, they have taken x as a displacement. तो कोई फर्क वाली बात नहीं है, dv upon dx भी आपको देखने को मिल सकता है. You might get to see dv upon dx, but don't panic. It is the same thing which I am doing right now over in the screen. और आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप इसको दिमाग में रखो, क्योंकि इसमें a को आप डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिखा रहे हो. With the change in displacement, with the change in the position, आपका acceleration change करेगा. So it is a variable acceleration के केस में इसका really handy, और बहुत काम की बातें इसमें हम लोग करने वाले हैं आगे चलकर, है ना. Anyways, for now, could I just write as v dv is equals to a ds, and you can see I would be integrating this from limits u to v, और आपका जो ds है मान लो कि 0 to s तक जा रहा है. हम इसको इंटीग्रेट मजे में कर लेंगे बच्चों, है ना. This is gonna be how much, v square upon 2. Let me write it here. So v square by 2, and the limits should be from initial velocity u to the final velocity v. On the right hand side we're going to have ads, as simple as that. We're going to have as, है ना बच्चों. इसका वैल्यूज पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, 1/2 you can take out common, you will be having
v square minus u square is equals to as. And now you're going to take this to that hand side. You'll be having v square minus u square is equals to 2as, and this is our third equation of motion. ये हमने सारे इक्वेशंस ऑफ मोशन को बच्चों डिराइव कर लिया है. दिस इज माय फर्स्ट वन, ये हमारा सेकंड वन हो गया, एंड दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. हमने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिराइव कर लिया है, और दीज आर गोना बी हेल्पफुल इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स. जब हम सॉल्व करेंगे तो उस टाइम पे इसका हमें काफी ज्यादा इस्तेमाल करने को मिलेगा, है ना. ऑलराइट बच्चों, नाउ गोइंग फॉरवर्ड मैं इसको समराइज कर दूं. तो थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हमने पाया अभी, वो फर्स्ट वन इज गोना बी v इज इक्वल्स टू u प्लस at. नंबर टू, s इज गोना बी ut प्लस हाफ at स्क्वायर, and number 3 could be written as v square is equals to u square plus 2as. आप इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, है ना. स्क्रीनशॉट भी आप इसको ले सकते हैं. आई बिलीव आपने स्क्रीनशॉट इसका आपने ले लिया होगा ना. चलिए, अच्छा, दो बातें मैं आपसे और भी करना चाहूंगा इसमें. फॉर a इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt के बारे में मैं थोड़ा बात आपसे करना चाहता हूं. ओके, लेट मी हैव दिस क्लीन्ड. ओके जी, ये हो गया भैया साफ, है ना. ओके, जस्ट अ सेकंड बच्चों, इसको मैं क्लीन कर दूं. ये हो गया फटाफट साफ, है ना. अच्छा, थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं. इफ यू लुक एट दिस वन, a इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt, इसे आप क्या समझते हो कि एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, या फिर किस, इसे आप समझते क्या हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कैन आई से दैट एक्सेलरेशन is proportional to the velocity or it is in the direction of velocity? ऐसा बोल सकते हैं क्या? एक्चुअली नहीं बोल सकते. आप इससे समझना चाहिए आपको कि एक्सेलरेशन जो है वो चेंज इन वेलोसिटी से प्रोपोर्शनल है. एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वेलोसिटी. बीइंग वेलोसिटी बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, वो हो सकता है कि द चेंज कुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, बिकॉज एक्सेलरेशन आल्सो इज अ वेक्टर क्वांटिटी इन इटसेल्फ, or the change could be opposite of your acceleration. हम इसको देखें, थोड़ा समझ लेते हैं. तो if I say a is equals to dv by dt, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं वेक्टर को हटाकर, या फिर मैं लिख दूं a is equals to minus dv by dt, थोड़ा समझना इससे क्या होता है ना. लेट अस से बच्चों कि एक ब्लॉक है, दिस इज अ ब्लॉक, और इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u मान लो, है ना, और इसके पास जो एक्सेलरेशन है वो भी इसी डायरेक्शन में मान लेते हैं. Now over a certain period of time, let's suppose कि ब्लॉक के पास जो वेलोसिटी आ गया, u का कुछ वैल्यू दे दो, ज्यादा समझ में अच्छे से आएगा. 2 मीटर पर सेकंड है, और एक किसी टाइम के बाद वो 5 मीटर पर सेकंड हो गया. एक्सेलरेशन स्टिल बीइंग इन द सेम डायरेक्शन. इन सम टाइम t, ये टाइम t इज इक्वल टू 0 पे था, और ये टाइम t इज इक्वल टू कुछ भी टाइम t मान लेते हैं. आप देखोगे कि जो चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी वो कितना हो गया, 5 माइनस 2 अपॉन सम टाइम t. तो बेसिकली एक पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, राइट. इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू. तो जब भी एक्सेलरेशन, इससे क्या समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन इज इन डायरेक्शन ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, उसी डायरेक्शन में, राइट. ऑन द अदर हैंड, अगर मैं इस एग्जांपल को थोड़ा सा रिवर्स कर दूं बच्चों, कि मान लो कि इसके पास वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड का था, और इसके पास वेलोसिटी कुछ टाइम के बाद लेट अस सपोज कि 2 मीटर पर सेकंड का रह गया है इन सम टाइम t, है ना. तो चेंज इन वेलोसिटी में निकालना चाहूं, if I want to find the rate of change of velocity, forget about the rate. Change in velocity should be how much? 2 minus 5, which is going to be minus 3 meter per second. इसका कहने का मतलब हो गया कि इस बॉडी पे जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा वो इस वेलोसिटी की चेंज के ऑपोजिट होगा, राइट. क्योंकि हमको पता है भैया कि a is equals to dv upon dt है. तो अगर a is equals to माइनस आ जा रहा है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, a is equals to minus of dv by dt, which means a is in the direction opposite to the velocity. a is in the direction of opposite of velocity change. तो इस केस में बहुत ही सिंपली आप समझ सकते हो कि इस बॉडी पे एक्सेलरेशन इस तरफ लग रहा होगा, क्योंकि वो इसके चेंज ऑफ वेलोसिटी है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो कुल मिलाकर बॉटम लाइन यही है कि दिस इज द केस व्हेन वी हैव द बॉडी एक्सेलरेशन, दिस इज द केस व्हेन द बॉडी इज इन अंडर द रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन. ये होता है इस बात का मीनिंग कि एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी. बच्चों, इट इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, रादर इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. सो एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको
आपको पता है बट थोड़ा इसको समझ लोगे तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा ना। तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आई एम श्योर आप इस बात को समझ पाए होगे, इसमें कोई भी दो मत नहीं है। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस, है ना। ठीक है, एक बात और, as I've told you, I want to talk to you two things. Let me talk to you about one more thing. क्योंकि हमें समझ चुके हैं कि जो एक्सेलरेशन होगा और वेलोसिटी होगा, आप उस चीज को अब रिलेट कर पा रहे हो। तो मैंने थोड़ा डायरेक्शन के सेंस में भी थोड़ा बात कर लूं यहाँ पे। और दूसरी बात एक बात और, अब पता नहीं कितनी बातें करनी पड़ेगी आपसे, अभी देखते जाइए। हम जब लिखते हैं व्हेन वी राइट v इज इक्वल्स टू ds अपॉन dt, है ना, इसका मतलब होता है कि जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होगा ना, दैट इज ऑलवेज गोना बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो एक इंपॉर्टेंट बात है, आप लिख लो इंस्टेंटेनियस आई एम टॉकिंग अबाउट इंस्टेंटेनियस, नॉट द एवरेज displacement. Instantaneous, so I'm not talking about the net displacement, I'm talking about the instantaneous displacement. Instantaneous displacement जो होगा बच्चों, instantaneous displacement is always, I'm using the word always in the direction of velocity, in the direction of instantaneous velocity. That would be a better word. In the direction of instantaneous velocity. Instantaneous velocity. जब भी हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे उसको वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही देखेंगे, वो हमेशा उसी के डायरेक्शन में होगा, नो मैटर व्हाट। एक्सेलरेटेड है, डी एक्सेलरेटेड है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, वो उसके डायरेक्शन में ही होगा बच्चों। कहानी क्लियर है। दूसरी बात, अगर मैं बोलूं, एक सेकंड रुक जाइए, मैं इसको थोड़ा इरेज कर लूं। इफ आई से और इफ आई गिव यू प्रॉब्ली अ सिचुएशन, आप उसको देखो और बताओ मुझे कि क्या हो सकता है वेलोसिटी का डायरेक्शन, है ना। लेट अस से बच्चों की एक बॉडी जो है वो ऐसे जा रहा है, ठीक है, इसके पास वेलोसिटी हमारा इस डायरेक्शन में है और इसके पास जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में है। अब क्या होगा, विल द वेलोसिटी चेंज इट्स कोर्स, और डायरेक्शन चेंज करेगा, या फिर इट विल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन। तो आंसर बेसिकली आपको होना चाहिए कि वेलोसिटी विल बी चेंजिंग इट्स डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। वेलोसिटी हमेशा खुद को एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में बेंड करता है, उसके डायरेक्शन के अलोंग हो लेता है। आप बात समझ रहे हो। तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी उसी के डायरेक्शन की तरफ चला जाएगा। वेलोसिटी विल चेंज इट्स डायरेक्शन टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये समझ में आनी चाहिए, और इसी पे हमारा आगे की कहानी होगा जो प्रोजेक्टाइल में पढ़ेंगे, है ना। किसी भी बॉडी पे देखो तो इसका जो होना चाहिए वेलोसिटी वो ऐसा कुछ होगा, है ना, इट विल गो लाइक दिस। अल्टीमेटली अपने आप को एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में गेट अलोंग कर लेगा। लेट्स से व्हेन यू थ्रो अ बॉडी एट अ वेलोसिटी v और इसके पास ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन नीचे की ओर लगता है, दैट इज द रीजन व्हाई द बॉडी विल गेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ये ना प्रोजेक्टाइल मोशन तो ही है क्योंकि वेलोसिटी अपने आप को एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में आपको ढाल लेगा वो, और कुल मिलाकर यही बात होती है, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए नाउ वी गोना डू और सम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। लेट अस डू सम प्रॉब्लम्स ऑन दिस टॉपिक, और इसमें दो मेजर प्रॉब्लम्स आपको मिलेगा। मोशन इन स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल में दिखेगा, वर्टिकल में दिखेगा, बाद में चल के हम रिलेटिव मोशन का भी बात करेंगे। एवरेज पे आपको क्वेश्चंस दिख जाएंगे ना, कुछ अच्छे क्वेश्चंस एवरेज के आपको इरोडोप्स में मिल जाएंगे। तो एवरेज पे जो क्वेश्चंस है वो आपको मिल जाएंगे। एवरेज वेलोसिटी निकालने पे कैसे उस बॉडी का एवरेज स्पीड होता है, वो सारी बातें आपको देखने मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल से। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है बच्चों, आई एम श्योर आप सभी कर लोगे इसको। लेट अस से कि हमारे पास एक बॉडी है, उसके पास एक इनिशियल वेलोसिटी है u इज इक्वल टू लेट अस से 2 मीटर पर सेकंड है, और वी हैव एन एक्सेलरेशन इन द सेम डायरेक्शन ऑफ लेट्स से 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको निकालना है कि किस टाइम पे इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इन हाउ मच टाइम द वेलोसिटी बिकम्स 10 मीटर पर सेकंड। फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम। चलो फटाफट कर लो सब, एवरीवन डू इट, दोज हु आर वाचिंग इट जल्दी से कर लो, इट वोंट टेक मच टाइम, 5-10 सेकंड में बन जाएगा। आपको क्या दे रखा है, पहला बहुत ही अच्छा रूल है फिजिक्स में सॉल्व करने का कि आप सारे डेटा को लिख लो जो भी दे रखा है, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट यू लुकिंग फॉर। सारे डेटा को अपना अपने नोटबुक में लिख लो, फिर कहानी को आगे बढ़ाना। यू दे रखा है बच्चों 2 मीटर पर सेकंड, और आपका ए दे रखा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपका वी दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड। पूछा क्या जा रहा है, टाइम पूछा जा रहा है, तो ठीक है, मेरे को दिख रहा है कि रिलेशन क्या है, वी यू ए और टी।
ऑब्वियसली बात है, आप क्या यूज करोगे, v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी, इसमें तो कुछ नहीं है ना, अब v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी यूज करोगे, v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी। वेल व्हाट इज v? v इज 10 मीटर पर सेकेंड, u इज योर 2 और a इज हाउ मच 1 और टाइम आपका मेरे को पता नहीं, दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड। तो बच्चे हो गया 8 इज इक्वल्स टू टाइम, तो कुल मिलाकर आपका आंसर हो गया 8 सेकंड में ये जो बॉडी है अपना ये 10 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी अचीव कर लेगा। तो आई बिलीव आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, कुछ है नहीं वैसे, है ना। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 2। मान लो बच्चों कि एक ब्लॉक है और ये मूव कर रहा है, लेट्स से 8 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है और इस बॉडी पे एक एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा है, विच इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विच इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द वेलोसिटी। आपको पूछा जा रहा है टाइम टू स्टॉप, टाइम इट विल टेक टू स्टॉप, टाइम टू स्टॉप, कभी ना कभी तो रुकेगा है क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट में है, तो बॉडी को स्टॉप करना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट थिंग व्हिच यू नीड टू डू इज टाइम टू स्टॉप। नंबर 2, डिस्टेंस कवर्ड बिफोर इट स्टॉप्स, बिफोर इट स्टॉप्स। और क्योंकि यहां पे डिस्टेंस कवर्ड बिफोर स्टॉप है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉडी अभी भी स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, वो जब वापस आता है ना, when it returns back, that is when the displacement and the distance would be different, but till it continues to move in the same direction, the distance and the displacement are both going to be same। तो अगर पूछता है आपसे डिस्टेंस निकालो या डिस्प्लेसमेंट निकालो, both will have the same value, है ना, before the stopping, till it stops, but after it stops, ये हो सकता है कि because the acceleration is acting constantly on it, ये वापस आएगा, है ना, उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग होगा। We gonna work out some such problems, but for now let's keep it simple, try and do it, सिंपल है। चलिए कीजिए, हो गया, सबने कर लिया, ऑल गुड, देन लेट्स डू द सॉल्यूशन। वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि इट इज गिवन, सम डेटाज आर गिवन, u is given as 8 meter per second बच्चों, a is given as -2। okay, now let's understand this thing, if you take right as positive then the left has to be taken as negative and the vice versa। अब राइट को पॉजिटिव मानते हो तो लेफ्ट को नेगेटिव मानो, लेफ्ट को पॉजिटिव तो राइट को नेगेटिव, ये तो आपको करना ही पड़ेगा व्हेन यू डीलिंग विद द वेक्टर्स थिंग्स। ओके, u is 8, a is -2, v is given as 0 because it is stopping, we just need to find what is the displacement, as simple as that, you know, or also we need to find the t, how much time it will take to stop। well you know, t तो easily we can find, v u a t के रिलेशंस को यूज कर लेंगे, आपको t मिल जाएगा बच्चों। तो we know that v is equals to u plus 80, that means 0 equals 8 minus 2। be sure about writing the values properly, आप नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखोगे, so be careful with that। okay, anyways with this I'm going to get t is equals to how much, 4 second। well that's an easy one, that's the first answer, ये बहुत ही मजे में आपको मिल गया ना। सेकंड क्या पूछ रहा है, सेकंड पूछ रहा है आपको डिस्टेंस कवर्ड बिफोर इट स्टॉप्स। ठीक है जी, मेरे को क्या दे रखा, u a, अभी मेरे के पास t भी आ गया ना, I have got the t also, 4 seconds, u a t, s is equals to ut plus half at square है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, s is equals to ut plus half at square, that's one way of doing it। other way of doing it is we have the v, we have the u, we have the a, and this is what we need to find। so I can also use v square is equals to u square plus 2as, this being 0, this is given to you, a is given to you। अब मजे में इसका वैल्यू भी निकाल सकते हो। चलो देख लेते हैं फटाफट। 0 is equals to u, 8 square is how much, 64 plus 2, a is -2, we're gonna have s, so the value of s is gonna be how much, 64 upon 4, तो I'm gonna have 16 meter, है ना। तो it is gonna travel 16 meters before it stops। आप चाहोगे तो इससे भी करके देख लो, आपको आंसर वही मिलने वाला है। आपका u कितना था बच्चों, 8, टाइम कितना था 4, 8 into 4 plus 1 upon 2, और आपका एक कितना है, a is -2, टाइम आपको ऑब्वियसली पता है, टाइम इज इक्वल टू 4 सेकंड, तो 4 स्क्वायर इज 16, आप कैंसिल आंसर कर लो। दिस इज गोना बी हाउ मच, 8 4 जा 32, और एक कट पिटा के -16 हो गया, देखो इट्स गोना बी 16 मीटर। well obviously the answer has to be same because both the methods are correct, so इसमें कोई भी शक नहीं है कि आंसर अलग होगा, है ना, आंसर सेम होगा, सॉरी, है ना। तो बेसिक बातें था, आपने समझ लिया होगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। बिफोर दैट लेट मी इरेज दिस। अब कुछ बातें करेंगे हम लोग जहां पे आपको ट्रेजेक्टरी दे रखा होगा। ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है
द पाथ विच द बॉडी इज गोना फॉलो इज कॉल्ड अ ट्रेजेक्टरी। अगर आपके पास ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन है, यू कैन फाइंड द पोजीशन ऑफ द ब्लॉक और द ऑब्जेक्ट एट एनी गिवन टाइम, किसी भी टाइम पे आप उसका निकाल सकते हो। आई एम गोना टॉक अबाउट दैट एज वेल, मैं उस पर थोड़ी बातें आपके साथ करने वाला हूं, ठीक है। बट फॉर नाउ लेट्स ट्राई एंड डू सम मोर क्वेश्चंस, कुछ और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हम लोग कर लेते हैं ना। अच्छा देखो, एक सिंपल सी बात मैं आपको समझा दूं कि अगर सपोज कि मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखा है, फिर लाइन ही दे रखा है ऐसे, यू नो, इफ द लाइन इज गिवन टू यू, लेट्स सपोज लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, हमने दे रखा है किसी भी x के लिए, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, फॉर एग्जांपल 2, आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y if इस लाइन का इक्वेशन इज गिवन ax plus by plus c is equals to 0 is given to you, I can put the value of x there and get the value of y, right? So this equation would be called as a trajectory of this path. अगर एक कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन के along मूव कर रहा है बच्चों, then this equation would be called as a trajectory of this path, है ना। तो अगर मेरे पास trajectory given है, I can find its position if it is in terms of x or y. If I know the value of x, I can get the value of y. अगर वो t के टर्म्स में है तो टाइम का वैल्यू दे रखा होगा, तो हम इसका भी पोजीशन निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान से, ठीक है। एक क्वेश्चन से आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड। मान लो कि एग्जांपल, हमारे पास एक बॉडी है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसका जो ट्रेजेक्टरी है वो इट इज गिवन एज टी स्क्वायर माइनस, ट्रेजेक्टरी इसको नहीं बोलेंगे, इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ट्रेजेक्टरी में आपको एक्स एंड वाई होना चाहिए, वहां पे टाइम का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ट्रेजेक्टरी इसको नहीं बोल सकते, वी विल नॉट से इट इज अ ट्रेजेक्टरी, बट इट इज द चेंज इन द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम दे रखा है, और पोजीशन ऑफ द बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इसको हम लोग बोलेंगे, वो दे रखा है, ठीक है। आपको पूछा जा रहा है, पहला क्वेश्चन आप लिखो, बड़ा ध्यान से क्वेश्चन को लिखना है ना। फाइंड पॉइंट नंबर 1, velocity at 6 सेकेंड, है ना, velocity at 6 सेकेंड आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। नाउ डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस एट 6 सेकेंड, थर्ड लिख लो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एट 6 सेकेंड, नंबर 4 लिख लो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकाल लो जी, है ना, एवरेज स्पीड एंड एवरेज एक्सेलरेशन आपको निकालना है। एवरेज वेलोसिटी लिख लेते हैं ना, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी at time t is equals to, or in time t is equal to 6, because this is a case of average। अब एवरेज को इंस्टेंटेनियसली की तरह डील नहीं कर सकते हो। when I say at, it means that particular moment, when I say in, it means from 0 till that time, that is the average। इंस्टेंटेनियस मींस एट पर्टिकुलर, एट 6 सेकेंड्स, बेसिक बात है, तो अंग्रेजी वाली बात थी, ठीक है जी। चलिए इसको आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और इसको एक बार ट्राई कीजिए, देन वी गोना डू इट टुगेदर, हम साथ में करेंगे इसको, है ना। ठीक है, आपने ट्राई कर लिया, चलिए लेट्स डू इट टुगेदर। इट इज गिवन दैट the position of the body moving in the x direction or in the x axis, in the horizontal you can say, it is given, है ना। तो पहली बात आपको ये समझना चाहिए कि बॉडी स्टार्ट कहां से करता है, तो मैं इस बॉडी की पोजीशन को यहां पे लोकेट करने का प्रयास करूंगा, अब ध्यान से देखना। एट टाइम t is equals to 0, कहां पे बॉडी है भैया, एट टाइम t is equals to 0 बॉडी है कहां पे, obviously I'm going to put the value of t is 0, I'm going to get the value of x from here, so we can see that at time t is equals to 0 x is 5, है ना। तो बच्चों अगर मान लेते हैं कि हमारा कुछ ओरिजिन है, तो बॉडी हमारा यहां था, कुछ 5 मीटर पे था, ठीक है। बॉडी स्टार्टेड एट x is equals to 5 मीटर, एट द टाइम t is equals to 0, तो हमारा बॉडी जो बच्चों है वो यहां पे है एट t is equals to 0 पे, वो 5 मीटर पोजीशन पे है। सेकंड थिंग जो आपको पता करना, वही पता करना है कि बॉडी राइट में मूव कर रहा है, स्टार्ट उसका इनिशियल वेलोसिटी कैसा है, टुवर्ड्स राइट या टुवर्ड्स लेफ्ट, उसके पास इनिशियल एक्सेलरेशन कैसा है, टुवर्ड्स अलोंग द वेलोसिटी और ऑपोजिट वेलोसिटी, well that will give you an insight about the accelerated motion or the retarded motion। तो पहली बात तो हम करेंगे कि इसका वेलोसिटी निकालेंगे। पॉइंट नंबर 2, I'm going to find the velocity, well v is equals to dx upon dt, we are well aware of these things। I'm going to differentiate this and I'm going to get how much, 2t negative 6, so at t is equals to 0 the velocity has to be minus 6 meter per second, which clearly means कि जो बॉडी के पास इनिशियल वेलोसिटी है बच्चों वो लेफ्टवर्ड है, बॉडी हमारा इस तरफ से चल रहा है ना जी।
और कितने वेलोसिटी उसका वैल्यूज है 6 मीटर पर सेकेंड। इसके पास जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा है 6 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट। करेक्ट है बच्चों? ठीक है, ऑल गुड। अब इसका ना एक्सेलरेशन निकाल लो, बॉडी के पास एक्सेलरेशन कैसा है। वी नो दैट a is equals to dv upon dt. What is v? 2t minus 2 6 sorry, तो dv upon dt will be how much? 2 meter per second square and this is constant. ये हमारा टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, तो दिस इज अ टाइम इनवेरिएंट एक्सेलरेशन एंड दैट इज पॉजिटिव 2। इसका मतलब है बच्चों कि एक्सेलरेशन जो बॉडी का है वो राइटवर्ड है, इस तरफ कुछ है ना। a is 2 meter per second square rightward. Obviously body is moving towards left, acceleration is towards right, which means body is going under the deaccelerated motion. Body ना slow down होगा, एक point पे रुकेगा for the instantaneous rest. I'm not saying that's going to be the permanent rest, that's going to be the instantaneous rest. Body वहां पे stop करेगा और वापस it is going to move back because the acceleration still is moving, is having in the rightward direction with a value of 2 meter per second square. अब ध्यान से बात को समझिए, पूछा क्या जा रहा है, वेलोसिटी एट टाइम t सेकंड 6 सेकंड सॉरी ना। तो 6 सेकंड पहले हम देखेंगे कि इसका बॉडी रुकता कब है ना। लेट अस फर्स्ट फाइंड इज द बॉडी कमिंग टू रेस्ट। क्या बॉडी 6 सेकंड से पहले कभी रुक रहा है क्या, वो हम थोड़ा चेक करेंगे, ठीक है। तो इज द क्वेश्चन इज इट स्टॉप और डज इट स्टॉप, यू नो। इसको देख लेंगे, पहला जो हमारा दिमाग में बात आना चाहिए, डज इट स्टॉप। ऐसे क्वेश्चन आपको जब दिखते हैं आपके दिमाग में सब बातें आनी चाहिए। डज इट स्टॉप बिफोर 6 सेकंड, बिफोर 6 सेकंड, ये होता है क्या, वो अपन को देखना पड़ेगा, है ना। तो कैसे पता करेंगे, मेरे पास वेलोसिटी का इक्वेशन है ना। I'm going to make it equals to 0 and I'm going to check whether the value of t is coming lesser than 6 and fortunately we are getting that, yes. So t is going to be equals to how much? 3 second. अच्छी बात है, मतलब कि ये बॉडी 3 सेकंड तक going to move towards left और फिर रुकेगा और फिर वापस जाना चालू करेगा, है ना। Like for example, when you throw the object upward direction, वो ऊपर जाता है for a certain height, stops and starts coming backward. सेम का सेम यहाँ भी हो रहा है ना। अच्छी बात है, चलो ठीक है, 3 सेकंड्स में रुक तो गया, तो 3 सेकंड में इसका पोजीशन कहां था, व्हाट इज द पोजीशन इन 3 t इज इक्वल टू 3 सेकंड, वो यहां से निकालेंगे, ठीक है। तो पोजीशन एट 3 सेकंड, आप इसको भी देख लो, पोजीशन एट 3 सेकंड, सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। पोजीशन एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड, ये बेसिकली एक पूरा का पूरा एनालिसिस है ऑफ दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस। आप हर एक चीज को अच्छे से समझ लो, कोई मुश्किल नहीं है ना। पोजीशन एट 3 सेकंड कहां से निकालेंगे जी, यहां से x शुड बी इक्वल टू हाउ मच, t का वैल्यू 3 पुट कर दो, 9 minus 18 plus 5 which means 9 5 14 minus 18 minus 4 meter. Well that is the position of the block, minus 4 meter, मतलब कि कहीं ना कहीं वो ब्लॉक यहाँ पे आ गया है, ये हमारा minus 4 meter है। लेफ्ट टू द ओरिजिन इज माइनस, तो ब्लॉक हमारा है इस पॉइंट पे एट टाइम t is equals to 3 सेकेंड। इस बॉडी पे वेलोसिटी तो 0 है, बट इसके पास जो एक्सेलरेशन होगा बच्चों, दैट इज गोना बी टुवर्ड्स राइट, a इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड, अभी भी इस पे ऑपरेट कर रहा है। यहाँ पे बॉडी क्या है, इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे और टेम्पररी रेस्ट पे है या मोमेंटरी रेस्ट पे है, वो ना मोमेंटरी रेस्ट पे बॉडी है यहाँ पे, व्हिच मींस यहाँ पे u मान लेते हैं 0 और बॉडी विल नाउ स्टार्ट मूविंग राइटवर्ड, है ना। तो t इज इक्वल टू 3 सेकंड्स पे बॉडी आपका यहाँ पे रुक जाता है, इट इज स्टॉपिंग हियर। और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि 6 सेकंड, एक काम करो, इसको कर दो 6 हटाकर इसको चेंज कर दो बच्चों, ये 3 है ना, इसको 4 कर दो, लेट अस मेक इट, या फिर 5 सेकंड्स कर दो, लेट अस मेक इट 5 सेकंड, है ना, 5 सेकंड कर देते हैं। ये 5 सेकंड पे बॉडी कहां होगा, हम इसको ये देख लेते हैं ना, 6 पे वापस तो उधर ही चल जाएगा, हमने पता है ना। तो ठीक है, इसको देखते हैं कि ना वापस नहीं जाएगा, बट ठीक है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी वहां पे 6 मीटर पर सेकंड है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर नहीं होगा, इसको 5 मीटर कर देते हैं, एक सेकंड और हमने डिक्रीज कर दिया, ठीक है। या फिर रहने दो, क्या जा रहा है, रहने दो, 6 से रहने दो, चलो 6 से ही बात करेंगे, लेट्स हैव इट 6 ओनली। 6 सेकंड पे क्या है बॉडी का सिचुएशन, वही देख लेते हैं, चलो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। एनीवेज अभी देखो, अब बॉडी विल नाउ स्टार्ट फ्रॉम हियर और वो जाना स्टार्ट करेगा टुवर्ड्स राइट, करेक्ट है जी। तो इन दिस केस पार्ट 2 आ जाएगा, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ मोशन। आफ्टर ये जो हम स्टडी कर रहे हैं, आफ्टर t इज इक्वल टू 3 सेकंड्स के बाद का जो भी जर्नी होगा, हम उसको थोड़ा बच्चों डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एट दिस पॉइंट, एट 3 सेकंड, एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड,
व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी 0, व्हाट इज एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट वर्ड है ना। अब मेरे को टाइम कितना दे रखा है, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, इसके बाद है ना। अब कहां जाएगा बॉडी वो हम देख लेते हैं। दो तीन तरीके से देख सकते हैं, या तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे t का डायरेक्टली 6, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है, पोजीशन दिखा रहा है, तो आपको डायरेक्टली वो बता देगा, है ना। मैं थोड़ा इस एरिया में जाना चाहता हूं आपको थोड़ा समझाने के लिए। तो इस सारे पैरामीटर्स के साथ जो पोजीशन होगा बॉडी का वो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यू आपका 0 है तो हाफ a कितना है 2 है, t कितना है 3 स्क्वायर 9 हो गया, ये आपका हो गया पॉजिटिव 9। मतलब कि यहां से वो 9 मीटर जाएगा। देखो कुल मिला के बात यहाँ पे वापस आ जाएगा ना, इसलिए मैं बोला था कि टाइम चेंज कर देते हैं ना, दैट्स द रीजन व्हाई आई वाज सेइंग कि टाइम चेंज कर दो बच्चों, वरना वापस आ जाएगा तो थोड़ा ज्यादा समझ नहीं आ पाओगे आप, डिस्प्लेसमेंट का कहानी थोड़ा सा डिमिस्ड हो जाएगा, है ना। तो आप समझ लो कि इसके बाद ना 2 सेकंड बचता है, ठीक है, 2 सेकंड बचता है। अगर हम 2 सेकंड मान के चलते हैं तो हमारा हो जाएगा 4, है ना बच्चों, ये हमारा हो जाएगा 4। अब देखो इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से 4 मीटर राइट वर्ड हुआ ना, तो कुल मिलाकर हम समझ पाएंगे कि यहाँ पे पहुंच गया बॉडी, एट द ओरिजिन पहुंच गया। इट केम बैक टू द सेम इनिशियल पॉइंट, इट केम बैक टू द सेम इनिशियल पॉइंट। t इज इक्वल टू 3 है और आपका हो जाएगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर हाफ at स्क्वायर। तो वापस कहां पे आ गया, वो यहाँ पे आ गया है आफ्टर। तो 5 सेकंड के बाद जो हमारा ब्लॉक है t इज इक्वल टू 5 सेकंड, वो हमारा यहाँ पे है। इसके पास कुछ वेलोसिटी भी होगा, तो वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, यहां से वेलोसिटी निकाल लो। v इज इक्वल टू u प्लस at, u 0 है तो v इज इक्वल टू 2 इंटू 2, दैट इज गोना बी 4 मीटर पर सेकंड। मींस इसके पास जो वेलोसिटी होगा बच्चों दैट इज गोना बी 4 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट। और ये वापस कभी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आर इन द सेम डायरेक्शन, तो वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, वो वापस अब नहीं मुड़ेगा। एक बार इसने लाइफ में वापस मोड़ लिया है, दोबारा वो बैकवर्ड नहीं लेगा, इट्स गोना बी कंटिन्यूड मूविंग टुवर्ड्स द इन्फिनिटी, वो चलता जाएगा। अब बात समझ रहे हो ना। तो कुल मिला के हमने सारे क्वेश्चंस को आंसर कर दिए। वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड व्हिच इज हाउ मच 4 मीटर पर सेकंड, है ना, हमने इसको निकाल लिया भैया, ये हो गया आपका 4 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड, डिस्टेंस का ध्यान से देखो, ठीक है, वो स्टार्ट यहां से करता है, वो आता है इस तरफ, आपका बड़ा गंदा से बना है, चलो ठीक है कोई नहीं, इसको फिर से बना लेते हैं बच्चों। स्टार्टिंग फ्रॉम हियर आपका आ गया यहां तक आ गया ना जी, कितना ट्रेवल किया, ये 5 और ये 4, तो 9 मीटर तो ऐसा ही हो गया। इट टुक अ टर्न, वापस गया कितना, वापस से गया 4 मीटर गया ना जी। तो 9 प्लस 4, तो डिस्टेंस एक्चुअली इस बॉडी ने मूव किया है ना, डिस्टेंस मूव्ड इज 13 मीटर। तो डिस्टेंस का आंसर आपको आ गया 13 मीटर, दैट इज 13 मीटर इज द डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कितना है देखो, स्टार्टेड फ्रॉम हियर और ये 5 मीटर कवर किया और वापस से यहीं पे है, ओरिजिन पे है, देखो डिस्प्लेसमेंट इज गोना बी दिस मच, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट शुड बी इनिशियल माइनस फाइनल, जो भी आपका पोजीशन है, एंड दैट बच्चों कितना है, दैट इज हाउ मच 5 मीटर। तो आपका डिस्प्लेसमेंट का आंसर आ गया बच्चों कितना, 5 मीटर। बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स। नेक्स्ट क्या पूछता है, एवरेज स्पीड, तो ऑब्वियसली एवरेज स्पीड इज हाउ मच, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है ना। तो हम जो लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं, एवरेज स्पीड, तो बच्चों एवरेज स्पीड आपका हो गया टोटल डिस्टेंस विच इज 13 मीटर और टोटल टाइम कितना है 5 सेकंड्स, तो 13/5 मीटर पर सेकंड इज द एवरेज स्पीड। क्लैरिटी है। और लास्ट में जो है एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है ना, तो दैट इज गोना बी द नेट डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज हाउ मच, आपको पता है 5 मीटर upon the total time taken which is also 5 seconds, so that's going to be 1 meter per second. So these are the couple of things that you should be knowing. Average speed आपको पता चल गया है और average velocity भी आपको पता चल चुका है। तो बच्चों ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब इसके बाद हम और भी क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड अपॉन द एवरेज स्पीड एंड ऑल, बट तब तक के लिए आप और मजे कीजिए, पढ़ाई कीजिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में वेयर वी कैन टॉक अबाउट द क्वेश्चंस ऑन द एवरेज स्पीड और उस बात को फिर आगे बढ़ाएंगे, है ना बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप लर्निंग। टेक केयर, बाय एवरीवन।